લાસ્ટ ટેન્સ શું ભણે આપણે બધા યાદ છે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પછી એમાં શું ભણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુ. વેરી ગુડ. લાસ્ટ ટાઈમ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ થોડું બાકી રહી ગયું હતું. યસ સર. હું માય સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરું છું, જોઈ લેતો એકવાર. એક સેકન્ડ. માય સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? યસ સર. ઓકે. આપણે ફોન માઇક ઓન છે એમનો. ઓ અવાજ પડે. એટલે બોલવું હોય તો માઇક ઓન કરી નાખો, ને માઇક ઓફ રાખજો. જો આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું ટેન્સ ને. નોર્મલ સ્ટાર્ટ લેક્ચર થશે આપણું. લાસ્ટ ટાઈમ લેક્ચર ભણ્યા આપણે વોટ ઇઝ ટેન્સ. ટેન્સ શું હોય બધા સમજ, કોઈ મને કહેશો થોડી? ટેન્સ ની ડેફિનેશન લખાવી હતી લાસ્ટ ટાઈમ, યાદ છે બધાને? ટેન્સ એટલે શું? હેલો, ટેન્સ એટલે શું બોલો? ચલો, ટેન્સ એટલે ટાઈમ અને સેન્સ વસ્તુનો બતાડે. સેન્ટેન્સ ટાઈમ અને સેન્સ બતાડે. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ભણેલા ટેન્સ, 3 types of tenses we studied: present tense, past tense, future tense. પછી આપણે ભણેલા types of the present tense. કેટલા ટાઈપ હતા હમણાં કીધું એમ? એક પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. આ ચાર આવે. હવે ચારેના આપણે યુઝેસ લખેલા અને એને જોડે એક્ઝામ્પલ જોડે સમજી લીધા. કોઈને કઈ ડાઉટ છે આમાં? લાસ્ટ લેક્ચરમાં કોઈને કોઈ પૂછવું છે કે ડાઉટ છે તો આગળ વધીએ આપણે. We can proceed? Okay, ચલો. આજે આપણે ભણીશું, સ્ટાર્ટ કરીએ લાસ્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ થી. એ છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એના માટે સૌથી પહેલું આપણે જે નોર્મલ લખીએ છીએ, શું આવશે? પહેલો વર્ડ સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ પ્લસ હેઝ, એક જ મિનિટ સ્ટોપ, એક જ સેકન્ડ આવું. ઓકે, આપણે ક્યાં હતા? આપણે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો અહીંયા સ્ટ્રક્ચર શું આવશે? સબ્જેક્ટ પ્લસ હેઝ અથવા હેવ પ્લસ બીન પ્લસ વર્બનું આઈએનજી ફોર્મ. તો જો સબ્જેક્ટ પ્લસ હેઝ હેવ પ્લસ બીન પ્લસ વર્બ આઈએનજી. આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજીએ તો શું આવશે એક્ઝામ્પલમાં? I have been using the mobile phone since
last one year. I have been using, sorry, spelling properly. I have been using the mobile phone since last 1 year. એટલે શું અહીંયા જો સબ્જેક્ટ કયો આવશે અહીંયા આઈ સબ્જેક્ટ થઈ ગયું બરાબર પછી have been આ થઈ ગયું સબ્જેક્ટ આપણું આ શું થઈ ગયું have been using શું થઈ ગયું બોલતા રહેજો ક્લાસમાં ઊંઘી નહીં જતા કોઈ આ verb અને આ થઈ ગયું ઓબ્જેક્ટ ઓકે તો મોબાઈલ ફોન શું થઈ ગયું ઓબ્જેક્ટ તો જब સબ્જેક્ટ પરના છે સબ્જેક્ટ થઈ ગયો આઈ it has have આવી ગયું અહીંયા પછી આવી ગયું been પછી use નું bing form. I have been using the mobile phone since last 1 year. This is the present perfect continuous tense. એનો મીનિંગ શું કીધું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે કામ મેં પહેલા ચાલુ કરેલું ભૂતકાળમાં ચાલુ કરેલું અને એ કામ હજી સુધી ચાલુ જ છે એ એક્ઝામ્પલ જોઈ શકો છો મેં ફોન યુઝ કરવાનું ચાલુ કરેલું 1 વર્ષ પહેલાથી એટલે 1 વર્ષ પહેલા અને હજી પણ હું એ યુઝ કરી રહ્યો છું તો એને કહેવાય I have been using the mobile phone since last 1 year. એ કામ પહેલા ચાલુ કરેલું એ કામ હજી સુધી કન્ટિન્યુ છે બરાબર કોઈને કોઈ ડાઉટ આમાં હવે તમે માંથી એક મજામાંથી કોઈ મને એક્ઝામ્પલ આપો આના માટે ટ્રાય કરો છો તો એક્ઝામ્પલ આપવાનું સેન્ટેન્સ ખાલી બનાવવાનું છે અહીંયા હેલો અવાજ સંભળાય છે મારો ક્લિયર બધાને યસ સર યસ સર હા તો બોલો ખબર પડી કે નહીં પહેલા એટલું મને કહો ચલો એને તો પછી જ સમજાવું સમજમાં આવી એ ચીજ समझ में आया ना तो बोलो यस Yes, sir. ખબર પડી બધાને ઓકે હવે આમાં જ આપણે બીજું કામ કરીએ આપણે આગળ એનો એક્ઝામ્પલ બીજો એક્ઝામ્પલ કેવી થઈ શકે ચલો એ બોલશે મારી જોડે જોડે તમે બોલો હું લખું ચલો એક્ઝામ્પલ લખો છે એવી રીતે he has been sleeping since 5 hours. 5 કલાકથી એ ઊંઘે છે ઊંઘવાનું 5 કલાક પહેલા ચાલુ થયેલું પછી તો ઊંઘે જ છે તો he has been sleeping since 5 hours. પડી ખબર કોઈ ડાઉટ આમાં કોઈને આગળ વધીએ ઓકે સ્ક્રીન દેખાય છે ખરા ને એ પણ કહું પહેલા હવે આપણો એનો યુઝ શું છે ચલો સેમ વસ્તુ અહીંયા તમે ક્યારનો બોલો છો ને વસ્તુ અહીંયા લખી કાઢું છું સેક્શન which started in past and is still continuing in future in present sorry in present action started in past and still continuing in future present આ થઈ ગયું present perfect continuous tense એક્ઝામ્પલ હમણાં જોઈ લીધા આપણે આમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ તો આગળ વધીએ આપણે બધાને ખબર પડી ગઈ
મોહિત ચાલો કે યસ કે ના બોલી શકો છો. Yes, sir. ઓકે ચલો આવી રીતે બોલતા હોય તો મને મજા આવે લેક્ચર લેવાની. કન્ટિન્યુ કરીએ આગળ. હવે આપણે આગળ ભણીશું નેક્સ્ટ ટોપિક. એ છે પાસ્ટ ટેન્સ. પાસ્ટ ટેન્સ એટલે શું? ચલો મને કહો. પાસ્ટ ટેન્સ એટલે શું? પાસ્ટ ટેન્સ એટલે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ ક્રિયા ભૂતકાળ. ભૂતકાળ. વેરી ગુડ. પાસ્ટ ટેન્સ નું આપણે મસ્ત ટ્રાન્સલેશન કરીએ ભૂતકાળ. ભૂતકાળ ક્યારે થાય? કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુ આપણે પહેલા કરી લીધી હોય. હવે સેમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જેમ સિમ્પલ પાસ્ટ ના પણ 4 ટાઈપ્સ છે. કયા કયા 4 ટાઈપ છે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, પછી પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ અને પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. હવે હું એક એક છે ને એક એકના સ્ટ્રક્ચર લખીને એક એક સમજાવતો જઈશ તમને લોકોને. પહેલા આપણે ભણીએ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. એમાં શું આવશે? એમાં આવશે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ એટલે સેન્ટેન્સ કેવી રીતે બનાવવું પહેલી પ્લસ ટીડ અથવા વર્બનો સેકન્ડ ફોર્મ પ્લસ સબ્જેક્ટ પછી ડીડ અથવા વર્બનો સેકન્ડ ફોર્મ. વર્બનો સેકન્ડ ફોર્મ એટલે પાસ્ટ ટેન્સ કહેવાય. એ આ તત્વ બધા પછી ઓબ્જેક્ટ અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટ એડ કરી શકીએ આપણે. તો એને કહેવાય સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. બરાબર. હવે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં કેવી રીતે આગળ વધીશું? એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એનો. એ લખો આઈ did my homework yesterday. મેં મારું હોમવર્ક ગઈકાલે પતાવ્યું. ગઈકાલે કર્યું. પછી બીજો એક્ઝામ્પલ I went to mall. થોડો મોલ લખી દો. Mall yesterday. ચલો આ બંને સેન્ટેન્સ થઈ કે મીનિંગ કહેશો મને બંને જણા. બધા પહેલું સેન્ટેન્સ વાંચશે ને મીનિંગ કહેશો. बोलो बोलो चलो. होमवर्क यस्टरडे. मैंने मेरा होमवर्क कल किया था. कल किया था. ओके वेरी गुड. सेकंड सेंटेंस बीजो कोई? सेकंड सेंटेंस चलो फटाफट. एक मिनट. आवाज क्लियर है? चलो सेकंड सेंटेंस શું છે? he went to mall. mall એટલે શું ખબર છે બધાને? mall એટલે શું? સિમ્પલ. તો ગેમમાં જઈએ, મોલ ખાવા જઈએ, મોલ આલ્ફા 1 મોલ આપડા એ મોલ થઈ ગયા. પણ બે ડે બિફોર યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલનો એની આગળનો દિવસ. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. એટલે આજે નહીં, ગઈકાલની એની પહેલા દિવસ. એટલે કહેવાય ડે બિફોર યસ્ટરડે. બરાબર. હવે આપણે થોડા યુઝીસ જોઈ લઈએ.
जिसकी भी था उसाना हुआ એટલે એને क्या क्या यूज कर लिया पड़े तो आपके किसकी इन केस ऑफ हिस्ट्री वो हिस्ट्री में वांचो છો ટેક્સ્ટ બુક બધા હે हिस्ट्री વાંચો છો એસએસ માં हेलो आंसर આપતા રહો જોડે જોડે તો મજા નહીં આવે ક્લાસમાં બધા हिस्ट्री વાંચો છો એસએસ માં એસએસ ની બુક વાંચો છો यस सर। શું આવે છે એસએસ ની બુકમાં हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी वेरी गुड પછી सिविक्स હવે તમે हिस्ट्रीમાં શું ભણો છો जो पुराने समय में हुआ था, राजा महाराजा के समय पे, ब्रिटिश के समय में। जो हुआ था पहले हो चुका था हाँ, हो चुका था। बराबर ऐसे कोई भी बातें हम लोग यूज करते हैं हिस्ट्री में सही बात यस सर। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में यूज होगा हिस्ट्री में मतलब पास्ट टेंस में यूज होगा चलो आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो आप खुद एग्जाम्पल दे दो उसका आपने अभी बोला ब्रिटिश करके कुछ महाराजा महाराजा की बात की आपने उसको आप बता दो कैसे इंग्लिश में लिखेंगे इसको हम लोग चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखूं अपने आपके लिए याद नहीं सर मैं बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो गांधी जी फ्रीड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। गांधी जी गांधी जी हैड फ्रीड फ्रीडम फ्रीड इंडिया फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश क्या हो गया गांधी जी सब्जेक्ट हो गया फ्रीड Yes. मतलब पास्ट है फ्री का Yes. इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ये होगा हिस्ट्री के केस में अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई किस्सा हुआ हमारे पास हम छोटे थे सब कहानी पढ़ते थे छोटी मोटी कहानी पंचतंत्र माली ऐसा हम लोग सुनी होगी एक था राजा एक थी रानी वाली कहानी याद है सबको तो ऐसे हम लिख सकते हैं Yes, sir. राजा अकबर वाली कहानी अकबर ने बीरबल को ये कहा था ऐसी कहानियों में भी हम लोग क्या यूज करते हैं पास्ट टेंस तो एक मिनट इन case of any incident कुछ कथित घटना या फिर कोई स्टोरी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पता है तो मैं लिखूँ नहीं कर आप बताए कि कोई क्या मैं लिखूँ आपने कौन कौन सी कहानी पढ़ी है लास्ट पास्ट में मैं एक कल का एग्जाम्पल लिख देता हूँ हम लोग सबने 2011 का वर्ल्ड कप देखा था इंडिया won वर्ल्ड कप 2000 2011 ये क्या हो गया कोई घटना है कोई एक्सीडेंट या कोई घटना है इसका हम बता रहे हैं इन केस ऑफ इंसिडेंट समझ में आया ये चीज अब एक और केस में हम यूज करते हैं इसको जैसे हमारी कोई आदत है इन केस ऑफ एनी लिमिट कोई पुरानी आदत है जैसे किसी को पुरानी आदत होती है कि हर रोज सुबह 5 बजे उठने का अब नहीं उठते है कोई या फिर किसी को पुरानी आदत हर रोज सुबह टेम्पल जाने का पर अभी बंद हो चुका है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे शी
to go to temple every he used to go to temple every day. ये कुछ चीज है, मतलब एक उसकी आदत थी, अभी नहीं चल रही, बट एक समय पे वो जा रही थी टेम्पल. दैट्स कॉल्ड, दैट्स यूज्ड इन द पास्ट टेंस. समझ में आया चीज? ये तीनों यूज समझ में आ गए. देखो एक ये भी है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि अ वॉक, एक ये है इन केस ऑफ लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब yesterday. yesterday मतलब एक पॉइंट पे है टाइम के, मैंने कल होमवर्क किया था, तो तब ये यूज होगा पास्ट टेंस. ये समझ में आ गया सिंपल पास्ट टेंस सबको? कौन कौन सी जगह यस पे यूज सर. होगा? और एक एक करके बोलिए सब. पहला कौन सा है, यूज कब होगा ये केस चीज? ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री में. देन केस ऑफ इंसिडेंट. देन इन केस ऑफ एनी हैबिट. इन हैबिट केस मतलब क्या ऑफ होगा? हाँ, कोई आदत, पुरानी कोई आदत होगी. ओके. देन इन केस ऑफ लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एंड पॉइंट में वो सेंटेंस को प्रोनाउंस करते हैं. मतलब कभी भी लास्ट, पुराना सोमवार, कल लास्ट मंडे को कुछ काम किया था, जैसे हम लोग हम पढ़ सकते हैं कि वी स्टडीड इंग्लिश, वी स्टडीड प्रेजेंट टेंस लास्ट संडे. सही है? यस. समझ में है सबको ये चीज? वी स्टडीड इंग्लिश लास्ट संडे, ये भी हो गया पास्ट टेंस का काम. इतना समझ में आएगा सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े. नो सर. नो सर. ओ, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है? इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज, एनीथिंग विच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? एक चीज जो अभी चल रही है. पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? एक चीज जो पहले चल रही थी, अब बंद हो चुकी है. इसके लिए हम स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए आप. आएगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आएगा वॉज और वर. पहले में क्या था याद है सबको? प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते थे हम लोग? इजेमा यूज करते थे हम लोग. इसमें आएंगे हम लोग सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब आईएनजी. ओके, तो इसे कहाँ यूज करेंगे हम लोग, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तरीके. स्ट्रक्चर को ऐसे सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब आईएनजी, ये सब आप लोग लिख देना बुक में अपनी, अब काम आएगा ये सब चीजें बहुत. इसका हम सेंटेंस बना के समझते हैं इसको. कैसे करेंगे ये? he was going he was going to school last month. वो लास्ट महीने स्कूल जा रहा था, अब नहीं जा रहा है. तो he was going to school. समझ में आया चीज? इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ. Anything which was continuing in the past. कोई भी चीज, कोई एक्शन हो, कुछ भी एक्शन हो, तो उसको हम
और जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी बट अभी खत्म हो चुकी है, इसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज यूज में, इसका हम यूजेस देखते हैं एक बार। यूज भी सेम ही होगा, देखो। इसको मैं डेफिनेशन बोलूँ या यूज बोलूँ, एक ही चीज है दोनों में। कोई भी चीज जो पास्ट में चालू थी, अब प्रेजेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि she was she was playing football last night। वो कल रात को फुटबॉल खेल रही थी। समझ में ये चीज? अब कुछ एग्जांपल दीजिए ऐसे ही बना के, कोई ट्राई करें एग्जांपल। हेलो। हाँ भाई। प्रथम था एक सर, मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी। ठीक है, लास्ट क्लास का हम बाद में स्टार्टिंग में डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, हम लोग देख लेंगे लास्ट क्लास का भी। अभी इसका पढ़ लेते। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी आई एन जी है। तो मैं क्या देखा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल लास्ट मंथ, मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हो रही थी। इसको हम थोड़ा काट के भी देख लेते, चलो। जैसे हमने पहले भी देखा था काट के। ये देखो इसको कैसे काटते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। वर्ब में क्या, ये वॉज है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रहेगा। सेम चीज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज प्लस वर्ब आईएनजी, तो ये हो गया शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल लास्ट नाइट। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी चीज पास्ट में कंटिन्यू हो रही है। इसका सेकंड नोट कहाँ पे होगा देख लीजिए आप। ये देखिए, एक रूल है, ये देखिए, पास्ट टेंस प्लस वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखे समझा देना कोई चीज। She was cooking while समझ में आ रहा नहीं आ रहा थोड़ा बहुत भी तो। सर बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। आप पहले बोल रहे थे, एक मिनट अभी रुको, मैं ऑफिस से अभी एक आवाज क्लियर था आपका, हमारा मेरा। हेलो। हेलो, क्लियर है आवाज? यस। ओके। हाँ, ऐसा मेरा स्क्रीन अलग है ना, तो मैं देख नहीं सकता शायद आपके कमेंट्स, इसलिए मुझे वापस आना पड़ता है। आप माइक चालू करके बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला यूज हमने बताया कि एनीथिंग व्हिच वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ही वाज गोइंग टू द स्कूल लास्ट मंथ। जो वो काम तो चालू था पिछले महीने में, वो काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, पास्ट कंटिन्यूअस कब यूज करेंगे हम लोग, दो काम कब चल रहे थे पास्ट में। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये सेंटेंस को, क्या है सेंटेंस में दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये वॉज कुकिंग एक हो गया,
वर्ब, ये दूसरा हो गया वर्ब प्लेइंग चेस, वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहला पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब दो इवेंट एक साथ चलते हो पास्ट में, तो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी एग्जांपल दे सकते हो कि मेरी मम्मी खाना बना रही है और मैं पढ़ रही हूँ। समझ में आया ये चीज? कौन बाकी? मेरी मम्मी खाना बना रही थी उस वक्त और मैं पढ़ रहा था उस वक्त। तो माई मदर वॉज कुकिंग while I was doing my homework। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मेरी मम्मी खाना बना रही थी। इसका ऐसा यूज होगा। समझ में आया चीज? यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब चलो आप लोग अभी एक एग्जांपल दो। अब अभी खुद का एक एग्जांपल दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सोचो सोचो, चलो एग्जांपल फटाफट सोचो और बोलो। कैसे बनाना समझ में आएगा एग्जांपल? सब्जेक्ट प्लस वॉज वो यूज करना है और वी यूज करना है। चलो फटाफट कोई सेंटेंस बनाइए, तभी मजा आएगा आपको समझने में। चलो मैं लिख देता हूँ लास्ट एग्जांपल, आज के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। They were दशहरा आ रही, हाँ दिवाली आ रही है ना, एग्जाम रिगार्डिंग एग्जांपल ये वाला चीज। They were cleaning the house last Monday। समझ में क्या चीज? पास्ट कंटिन्यूअस। किसी को कोई डाउट इसमें? ऑल डन, आगे बढ़ते। नेक्स्ट अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबको याद है वो क्या था? थोड़ा मुझे बताइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था? याद है सबको? थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया उसको पता होगा क्या था वो, उसका मीनिंग क्या था? जो चीज अभी हो रही है, अभी खत्म हुई है सब, खत्म जस्ट अभी हुई। खत्म। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? वो सकते कि कोई चीज, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? कोई चीज अभी खत्म हुई है, बराबर। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? कोई चीज पहले खत्म हो चुकी है, उसके बाद कोई नई चीज स्टार्ट हो चुकी है। समझो, इसे वापस से बोलता हूँ मैं। एनीथिंग मतलब, आपका आवाज माइक ऑफ कर दी ना प्लीज। तब सुनो, इसका मीनिंग क्या होगा? कोई चीज जो पहले खत्म हो चुकी है एंड उसके बाद कोई नई चीज स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद एंड वो कंटिन्यू होगी। उसको हम पहले स्ट्रक्चर देख के बाद एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं उसको। तो एग्जाम्पल ऐसा सब्जेक्ट ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो पढ़े जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो चीज मैं अभी जो बोला ना, इसमें लिखता हूँ। एनीथिंग which
completed in the past and some other action started after it. इसके एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल की तरह पहले समझते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री एंड हेड प्लस वर्ब थ्री, तो ही had eaten lunch. He had eaten the lunch. एग्जांपल समझिए पहला क्या होगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। वर्ब में क्या है ये चीज, ये हेड है, जैसे इसका फॉर्म है हेड प्लस वर्ब का थर्ड, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन, तो ही हैड ईटन द लंच। समझ में ये चीज। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग में एग्जाम्पल के समझाता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए पहले, एज शी कंप्लीटेड स्टडी she went to school। एग्जाम्पल देखो ध्यान से देखिए और समझिए, इसमें कौन कौन से टेंस यूज हुआ समझ में आया। पहले ये देखो, पहले सेंटेंस दिख रहा है सबको आपको, वो सेंटेंस है ये वाला, एज शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड कंप्लीटेड इसलिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी वेंट टू स्कूल। ये क्या कौन सा टेंस में है बताइए मुझे। पहला देखो, पहला सेंटेंस क्या है, एज शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क शी वेंट टू स्कूल। पहला सेंटेंस क्या है, होमवर्क, फर्स्ट सेंटेंस आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। इसका मीनिंग क्या होगा, स्कूल। तो इसका पूरा मीनिंग देखते हैं हम लोग। जैसे उसने होमवर्क खत्म किया था वो स्कूल गई। मतलब दो एक्शन हुई यहाँ पे। मतलब देखो, एक काम खत्म हो गया यहाँ पे, एनीथिंग विच कंप्लीटेड इन द पास्ट, वो काम यहाँ पे खत्म हो गया, उसने होमवर्क खत्म कर दिया। एंड सम अदर एक्शन स्टार्टेड आफ्टर इट, उसके बाद वो क्या किया उसने, वो स्कूल चली गई। दो एक्शन हुई तब ये यूज होगा ज्यादातर। तो ये चीज, एक एग्जाम्पल देता हूँ दूसरा, एज दी स्टूडेंट। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ राज का। राज passed the examination as the examination he as Raj passed examination he was happy। आवाज आ रही है ना क्लियर मुझे। तो इसका मीनिंग आप मुझे बताइए। हाँ मैंने सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है आपको।
जो हाईलाइट किया वो यस सर। चलो यस सर। वो पढ़ी एग्जाम्पल पढ़िए, ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए। As the Raj passed the examination, he was happy. यहाँ पे क्या 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 एक्शन है बताइए, चलो क्या क्या एक्शन बताइए, क्या क्या एक्शन है यहाँ पे। एक एक्शन ये है कि उसने एग्जामिनेशन पास की, राइट, सही है। एंड सेकंड एक्शन क्या है, उसने, वेरी गुड रजत, ये पास्ट टेंस का था, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या है ये चीज, as the Raj passed the examination, he was happy। तो दो सेंटेंस यहाँ पे, उसने एग्जामिनेशन पास की, एक हो गया। अब सेकंड सेंटेंस क्या है, he was happy, मतलब उसने जैसे ही एग्जामिनेशन पास की वो खुश हो गया। और यहाँ पे गलती से मेरी हेड आएगा, as the Raj had passed the examination, जैसे उसने एग्जामिनेशन पास किया वो खुश हो। तो ये कब हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गई थी। समझ में आया चीज कि जो कुछ चीज पास्ट में कंप्लीट हुई एंड उसके बाद कुछ एक्शन स्टार्ट हो गई। समझ में आया चीज, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। अब है लास्ट आज का, ऐसे भी 15 मिनट बाकी है, तो आज का लास्ट हम पढ़ेंगे क्या है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबको याद है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उसका क्या था, हमने लिखा वो चीज पता है सबको, वो कब यूज होगा बताइए, चलो बताओ बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें क्या था, ये चीज थी कि कुछ काम पास्ट में चालू हुआ है एंड अभी भी चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन। जैसे हमने एग्जांपल लेते, आई एम राइटिंग सिंस 1 आवर, मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, एक चीज पास्ट में चालू हुई बट अभी भी चल रही है। अब ऐसा ही कुछ पास्ट पास्ट वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में कैसे होगा ये देख लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी। तो उसको हम समझते हैं यहाँ एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे चीज क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। उससे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ उसका कहाँ यूज होगा। आई हैड बीन टीचिंग एट कॉलेज, आई हैड बीन थोड़ा बहुत स्टडी एट कॉलेज। देखो सेंटेंस कैसे बनाए चीज, एक पहला हो गया सब्जेक्ट हो गया ये चीज, सब्जेक्ट राइट आई, उसके बाद हैड बीन स्टडी, मतलब हैड बीन प्लस स्टडी का थर्ड फॉर्म हो गया स्टडी, स्टडी का आईएनजी फॉर्म हो गया स्टडी। अब
किस लिए यूज होगा? जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज हुआ था? जब कोई चीज पास्ट में चालू हुई बट अभी भी चल रही है। इसमें क्या होगा, कोई चीज पास्ट में चालू हुई, उसके बाद एक चीज चालू हुई और वो पास्ट में खत्म हो गई। एक्शन, देखो मैं यहाँ पे उसका यूज लिखता हूँ, मैं अभी जो बोला ना उसको, एक्शन which started in past, continued in past, and completed in past। मतलब कोई एक्शन तो चालू हुई थी पास्ट में, वो चालू हुई थी, वो चली और वो खत्म भी हो गई। उसके बाद कोई नई सारी चीज चालू हो गई, तो क्या होगा ये चीज? एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड। तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल इसका ये देख लीजिए, यू हैड बीन प्लेइंग द पियानो, आप पियानो बजा रहे थे। आप एक समय पे पियानो बजा रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग द पियानो। जैसी कोई आदत होती है पहले कि आप हमेशा ये काम करते रहते थे, एक आदत से, तो यू हैड बीन प्लेइंग द पियानो एट दैट टाइम, ऐसे हम बोलते थे ना, ऐसे। अब तो इसको मैं एक बार या समझ में आती है चीज। कोमल तो आपने सही लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट एग्जांपल सही है। एंड चलो ये चीज देखो आप सब, आप प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये समझ में आया पहले आपको, ये बताइए या फिर एक बार समझाऊंगा? आप लोग हैं मेरे साथ? सर समझ आ गया। इसको समझ में नहीं है वो बताइए, या फिर एक बार समझाओ और रिपीट करो एक बार और। चलो एक बार रिपीट कर ही लेता हूँ। हिंदी में एक पद्धति में रिपीट करता हूँ, दोनों में करता हूँ। चलो हिंदी में, चलो इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ मैं। द एक्शन which started in the past, continued in the past and completed in the past। मतलब क्या क्या, एक एक्शन तो चालू है, जैसे कि स्टडी है, वो मैंने चालू की थी पास्ट में, पढ़ना चालू किया था बट अभी पढ़ नहीं रहा। आई हैड बीन स्टडीइंग एट द कॉलेज, खत्म हो गया मेरी पढ़ाई। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्कूल। हिंदी में बताता हूँ तो कोई भी चीज तो पहले चालू हुई थी, बात उसमें चालू थी एंड खत्म हो गई। आपको एग्जांपल खुद से बना सकते हैं ऐसा कुछ, जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का बनाया था एग्जांपल ऐसे? चलो इसको हम, ये समझ में आएगा सबको तो आगे बढ़ते हैं। ओके 5:25 हो चुकी है आज की। एक काम करते हैं हम लोग, आज थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, आज हम क्या पढ़े। आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। आज मैं उसका पास्ट टेंस का रिवर्सन करवा देता हूँ। आज हम 4 टेंस पढ़े ना, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके आप लोग बोलोगे उसका मतलब क्या है। ओके, मैं जस्ट स्लाइड चेंज करूंगा, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। चलो पहला सिंपल पास्ट टेंस कौन बोलेगा, पहला स्ट्रक्चर। चलो चलो कोई तो बोलो फटाफट, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आ गया तो आपको इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ
वो क्या था जो आपने छोड़ दिया, वो था V2, वर्ब टू। ये V2 लिखा मतलब वर्ब टू फॉर्म, वर्ब टू का पास्ट टेंस। जैसे हम लोग सर आवाज साफ नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ, वर्ब टू मतलब क्या होगा, वो वेंट गॉन, मतलब वेंट जो होगा वो होगा, स्टडी का होगा स्टडीड, देन प्ले का होगा प्लेड, वो सब पास्ट टेंस, वर्ब सेकंड फॉर्म हुए। तो ये देखिए हमने क्या एग्जांपल लिया था इसका, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। I did my homework yesterday. He went to mall the day before yesterday. Gandhiji freed India from British rule. India won the World Cup. ये सारे के सारे पास्ट टेंस में थे। क्या था इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कब यूज होगा ये चीज, हिस्ट्री में, किसी इंसिडेंट में, कोई पुरानी आदत में जब चालू की, या फिर किसी भी लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होगा, मतलब कल किया था, परसों किया था, वो सब चीजें। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी। तो मतलब उसका यूज कहाँ पे होगा, एम्प्टी विच वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, शी वाज प्लेइंग फुटबॉल लास्ट नाइट, वो कल रात को फुटबॉल खेल रही थी। सेकंड एग्जांपल है, शी वाज कुकिंग व्हाइल आई वाज प्लेइंग चेस। देन है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको कैसे हम यूज करेंगे, वो चीज, जो चीज पास्ट में चालू हुई एंड पास्ट में खत्म हो गई, फिर उसके बाद एक चीज चालू हो गई। जैसे ये फिर एग्जांपल देखिए, as she had completed her homework she went to school, मतलब उसने होमवर्क खत्म किया पहले, फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, she went to school। ये देखिए, ध्यान से देखिए चीज को, पहला सेंटेंस जो होगा ऑलवेज पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सेकंड सेंटेंस ऑलवेज पास्ट टेंस में जाएगा। समझ आएगा सबको? ये डाउट में से किसी को डाउट? नो सर। अब है लास्ट, नो सर। ये लास्ट है, the action which started in the past, continued in the past and completed in the past। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देख ले आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आएंगे फॉर्म। कैसे होगा, आई हैड बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज, यू हैड बीन प्लेइंग द पियानो। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज चालू थी, वो चली एंड खत्म भी हो गई, और उसके बाद कोई नई एक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस चली थी, उस वक्त चली फिर बंद हो गया, तो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया ये चीज? यस सर। आज पास्ट टेंस हो गया आपका, लास्ट टाइम प्रेजेंट टेंस हो गया था, पास्ट टेंस हो गया। तो किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? नो सर। नो सर। नो सर। सबको सब कुछ समझ में आया है? यस। यस